Still, still. Thank you so much, photographers. Let's please start with the event. Yes, sir. Center. Sir, will you center? Yes. Thank you so much. Thank you so much. All हमें जीतना सिखाए ना सिखाए, लेकिन हमें जीना जरूर सिखाने वाली है. So एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the film Blue Mountains. Once again मैं रंगीली रुचि आपको वेलकम करती हूँ to this beautiful. और मैं क्रिश मूवीज़ की तरफ से एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हमारे मीडिया के सभी बंधुओं को और ब्लू माउंटेन्स फिल्म की स्टार कास्ट और इसकी क्रू को जो आज यहाँ पर उपस्थित है. देखिए क्लब है तो माहौल भी बिल्कुल डिफरेंट है. आज देखिए ब्लू माउंटेन्स के ऊपर कलर भी ब्लू का ये जो दिया हुआ है ये भी काफ़ी कुछ मैच कर रहा है और मैडम ने भी कलर कुछ ब्लू जैसा ही पहन रखा है. क्या कहते हो दोस्तों? तो काफ़ी कुछ ब्लू 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 मिल रहा है. आगे पीछे हर तरफ ब्लू है और मैंने भी शायद ब्लू ही पहन रखा है. मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहता हूँ कि कुछ महान हस्तियाँ अभी यहाँ पर उपस्थित होने वाली है. जैसा कि आप जानते हैं मुंबई में जो रास्ता है उसका कोई माई बाप नहीं है क्योंकि जाम बहुत होता है. मुझे खुद को पहुंचने में आधा घंटा लग गया. तो डेफिनेटली जो हमारे सुपर गेस्ट आने वाले हैं वो भी कहीं रास्ते. मुझे बहुत अच्छी लगी. स्क्रिप्ट सुन के ही मैंने रोल को हाँ बोला था. आई कांट से एनीथिंग. दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल. सो इस को रहने दीजिए प्लीज. अच्छा रहा. इसमें जज का रोल है और हम लोग बीच बीच में आते हैं और मोंटी शर्मा मेरे साथ है और बाली है मेरे साथ. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. पूरी फिल्म में बहुत अच्छी है. हमारी अपनी अकेले की बात क्या करें. होल इंटायर मूवी इज़ वेरी वेरी गुड. करके बुलाना तो बहुत मुश्किल है. वेरी डिफिकल्ट. हर बच्चा कुछ उम्मीद लेके आता है. अगर आपको वो नहीं भी थोड़ा कम भी है तो उसको डिसहार्टन नहीं करना चाहिए. प्यार से समझा देना चाहिए. Thank you so much. When Suman approached me for this role, you know, I really wanted to do it because क्या है कि channels जो है they only think about increasing their TRPs and they don't actually think about what happens to the kids after the kids go home, you know. तो वो जो सुमन का ये सब्जेक्ट तो था ये था कि everybody cannot be a winner. There are losers. There's only 1, 2, 3 winners at the most, you know. But out of thousands and thousands people of children and of teenagers who take part in this kind of reality shows, there has to be 98% losers. So those losers have to understand that every game is not for winning, and even like the subject of a movie is that the failure is the first step to the success, you know. वो बहुत important है कि इन बच्चों को मतलब उनको समझ में आए कि when they come for reality shows or rather for that. जितने मेरे यंग एक्टर्स हैं तो वो लोगों ने जो है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस फिल्म के लिए और आई एम थैंकफुल टू एवरीवन. मेरे डीओपी सामने खड़े हैं. इवन ऑल माय एक्टर्स, ऑल माय टेक्नीशियंस जो आज यहाँ पे आ पाए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, तमाम लोगों के लिए जो है आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड. और इंटरेस्टिंगली इसमें अंदर जो super excited and like sir said, you know, I was just starting in the school. I had no idea, you know, what do I have to become. Like I was just going with the flow, you know. And suddenly this audition came and in 12th standard, I was there in 12th standard and then I gave this audition. I had no idea how to give an audition. Chandra, usually auditions hote nahi hai. I was there, it's like this is the mark standard and say the dialogue. And I just assumed some imaginary boy who have to say the dialogue and I was saying like this. So he's like, no, look into my eyes and say the dialogue. So I looked into his eyes and said the whole dialogue, the whole monologue. And then I got that standing ovation. And it was like, oh my god, am I really an actor? Like I
inside me. He is the one who found that actor in me. He's the one who brought me here. So I'm really thankful to Sumanda for bringing me here. It was a great experience all throughout. From the first day, he signed me for the movie, called me to Mumbai for the My character is Humpty. So मेरा कॉमिक कैरेक्टर है एंड आई एम अ कैरेक्टर की जो सीरियस सिचुएशंस में बहुत ऐसे डायलॉग्स बोल देता है जो उसे नहीं बोलने चाहिए. सो आई एम प्लेइंग अ रियली फनी रोल इन द मूवी. दैट्स हाउ माय कैरेक्टर. रंगीली मैं हूँ, रंगीले आप बन के आए, कैसे हैं आप? वेलकम वेलकम. सो नाउ दैट यू आर हियर, ट्रेलर का जो एंट्री सॉन्ग है वो ही आपकी आवाज़ में है यहाँ पर. पहले बताइए कुछ आप उस गाने के बारे में, उसके बाद में यहाँ पर सभी लोग विटनेस करने वाले हैं उस गाने को. नहीं, सच पूछिए तो काफ़ी साल पहले गाना रिकॉर्ड हुआ था जब यथार्थ आधे साइज का था. और लेकिन बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आदित्य जी के साथ बहुत काम किया है. उस वक्त पे तो हम लोग तो बस जैसे कि बहुत प्रोजेक्ट्स करते हैं उनसे ऐसे किया था, लेकिन अचानक से उनके जाने के बाद ही पहली बार दूसरी चीज़ हो रही है रिलीज़ हमारे साथ में. और सुमंदा ने बहुत ही प्यार से इस फिल्म को बनाया है. आजकल बच्चों को फिल्म को उस तरह से बच्चे भी प्रमोट नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म को राजेश जी ने इस फिल्म को आगे ले आया. और इट्स सीइंग रिलीज डेट अप्रैल 7 अप्रैल. और सबके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि अच्छी फिल्म बनी है और सुनना बहुत ही एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है. तो सिर्फ सारी बातों का यही है कि गाना मुझे अब याद नहीं है, वो आप सुना देंगे तो मैं समझ जाऊँगा. जी जरूर, फिर इमीडिएटली सुनकर मैं इमीडिएटली आपके लिए लाइव. चलिए, तो let's have the trailer please. Trailer of the film Blue Mountains. So welcome. आज की शाम में आप यहाँ पर आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. Let's have some pictures please. Let's have a quick picture, please. Thank you so much, photographers. Thank you so much. One sec, please, one sec. So I would request the chief guests, Bapida and Leslie ji, to please stay with me. Just look here. Monty Sharma, ladies and gentlemen. Yes. Actually taken time and Leslie's exciting compositions for the film. Can we please have claps for all of them? All right, thank you so much. बपीदा आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आप समय निकाल करके आए हैं. मैं रंगीली रुचि, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. थैंक यू सो मच. आई वेलकम यू फ्रॉम द टीम ऑफ ब्लू माउंटेन्स. कैसा लग रहा है आपको? ये मूवी जो बनाई गई है, इट्स कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म एंड इट टॉक्स अबाउट ट्रेलर या सब ट्रेलर दिखाने वाले हैं यहाँ पर. हाँ जी, तो हम ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पर आए हुए मीडिया मेंबर्स से तब तक? बस मैं आप लोग को सबको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ. ब्लू माउंटेन्स पिक्चर बनी, राइट? एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म. एंड यू नो आई एम रेयर आई एम कमिंग फॉर एनी पार्टी, but anyway my PR Nandini and Anusha, they have requested me to come over here, and I'm congratulating Monty, very talented, and very talented Leslie. All this are my brother Shan. वो तो मेरा फेवरेट सिंगर है और हमेशा मेरा साथ गा और all films. अच्छा, very good, all the best and all the best for the film. Have a good luck. Thank you.
ग्रेसी जी किधर है? हाँ आइए ग्रेसी जी आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Grace of the occasion is Gracie. Thank you so much, Badrika. Yes, look here. Suman ji, please. Yes. Alright, so ladies and gentlemen, बप्पी दा के हाथों आज लेस्ली लुइस के हाथों Blue Mountains film के म्यूजिक बॉक्स का अनवीलिंग यहाँ पर होगा. You guys will also get to listen to the amazing music of the film in a short while, but until then, presenting the music for the film Blue Mountains out now. And we have Sean, and we have Monty Sharma, and we have the actors of the film, Gracie Singh. Yes, look here, please. Center look. Yes, sir, center look. अरे भाई तेरा फ्लैग खींच के लेगा यार। ये तो खड़े थे तो बैठ गया तू। Thank you. एक मिनट ना। Yes, look here, please. ये भाई फोटो नीचे नीचे बैठ जाओ भाई भाई हो गया खड़ा करेगा टेंशन मत हो गया? देख नहीं तो वापस Okay, thank you so much photographers, thank you so much. Photographs हम खींचते रह सकते हैं, thank you so much. मैं चाहूँगी यहाँ पर कि हम बप्पी दा को, लेस्ली लुइस को, and जैसा हम शान को प्लीज इसको करने दो फिर आप करना आ जाना सचिन अभी इसको करने दो Okay. आजा भाई आजा Yes. अच्छा लगा जो today's generation classical and rock anyway, but first song also fantastic. ये भी गाना बहुत अच्छा है. मैं सोचता हूँ ये पिक्चर सबको देखना चाहिए. जो आज का जनरेशन इतना अच्छा आप लोग ब्लेंड किया है और तुमने बहुत अच्छा गाया. जाथर्थ ऑल द बेस्ट फॉर जाथर्थ. एंड शान तो है ही मेरा भाई, फोटो लगा हुआ है. ऑल द बेस्ट. के दूल्हे नहीं है भाई, थोड़ा पर हिट है लेकिन वो भी मेरा ही गाना है. लेकिन आजकल नया जनरेशन सब्जेक्ट राजेश शर्मा नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है. मैम ना वेट पुराने गाना नया गाना का बात नहीं है. मेरा जितना भी गाना है 74 से बम्बई से मेरा आज तक बुलाला हो, चाहे तूने हमारी एंट्री थी, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा हो, आज का आलिया भट्ट, भगवान का दयाल से गाना पसंद करता है, गाना पसंद करता है. लेकिन मैं आज बोलूँगा आजकल बच्चे लोग को लेके इंस्पायर कोई नहीं करता. और लगा देख के मैं क्या बोलूँ. मैम लुक सेंटर It's about music, it's about simple and
जय गंगा जल में मैं काम किया था, गाना गाया था प्रियंका, लेकिन शी इज वेरी गुड, फैंटास्टिक टैलेंट। रणवीर भाई भी बहुत अच्छा कर रहा है और बच्चा जो है वेरी गुड, अपना वॉइस दिया, इससे बड़ी आप लोग जो एक बच्चे को स्कोप दिया है, ये देख के बच्चे लोग इंस्पिरेशन होला। आज मेरा सारेगामा शुरू किया था, लेकिन आज वो आर्टिस्ट को अपने हीरो बनाया, ऐसे जी ऐसा आर्टिस्ट को लेके आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर से बुला रहे हैं Superb, yeah. Superb role. Full. That's rock and roll. Full blast. Superb song. But Tan was such a. He had some deadly kids. Times are such that such music is good and some younger kids will get some exposure. शान जी क्या कहना चाहेंगे, आज ब्लू माउंटेन के म्यूजिक लॉन्च पे आए हैं, किस तरह से म्यूजिक को देखते हैं और इस म्यूजिक को आपने कितना आनंद देगा और क्या अच्छा लगता है? नहीं बिल्कुल, मैं जब आया था यही विचार के साथ आया था कि आदित्य जी का म्यूज़िक है और मैंने गाना गाया था, तो आदित्य जी के याद में ही आया था। लेकिन अब जब म्यूज़िक सुना और मोंटी शर्मा के भी गाने सुने और इतना कमाल का मज़ा आया कि इस दौर में इस तरह का जो एक म्यूज़िक आएगा, आई थिंक इट्स गोना क्रिएट अ होल न्यू वेव, और न्यू एक रिवाइवल होगी म्यूज़िक की, और क्लासिकल सेमी क्लासिकल रॉक जो भी ये जॉनर्स है जो वाकई ख़त्म हो चुके हैं हमारे फिल्मी म्यूज़िक से, तो इस तरह का म्यूज़िक सामने आ रहा है। इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड यूथ बेस्ड फिल्म है, तो होपफुली जो यूथ है उनको ये प्रभावित करेगा म्यूज़िक। जिस तरह से म्यूजिक की बात करें, पुराने गानों को ट्रिब्यूट करके नए गानों में नए पिक्चरों में लिया जा रहा है। हाँ, बहुत सारे गाने हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेलोडी कम हो गई है, या फिर नए सिंगर्स को नए गानों के बारे में कुछ ऐसा नहीं, अभी वो जो कर रहे हैं आप उनसे पूछेंगे तो बेटर है, क्योंकि वो क्या सोच के ऐसा कर रहे हैं हमें तो नहीं पता। हमें तो लगता है कि आज भी हमारे पास बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर्स हैं जो बहुत अच्छी ओरिजिनल म्यूज़िक दे सकते हैं, तो उन पर और भरोसा करना चाहिए। और डेफिनेटली म्यूज़िक तो इतना बड़ा समंदर है कि शायद एक जो कतरा ही वहाँ से निकला होगा, तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ ओरिजिनल म्यूज़िक। कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराने गाने में इतना टैलेंट भरा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कितना टैलेंट है, तो उनको आगे आना है बस, आई थिंक। और Sir, Shan, I love Shan. I'm telling you today, I've had a blast with Shan, and I share में शान के साथ बहुत ऐसी चीज़ें हम शेयर करते हैं जो हमारे लिए बहुत पर्सनल है और बहुत सोलफुल है। और शान ने जब भी मेरे गाने गाए हैं, जैसे जब से तेरे नैना गाया, तो बहुत ही दिल से गाया और वी रियली इन्जॉयड। और अब हम रिसेंटली दुनियादारी पिक्चर थी जो गुजराती में थी, उसके लिए शान ने गाया, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया, कमाल के साथ में। हाँ, और लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क विद शान, बिकॉज आई ट्रस्ट हिम फ्रॉम माई हार्ट एंड आई लव हिम फ्रॉम माई हार्ट। एंड ही इज़ वो एक पर्सन है, एक बंदे हैं जो काम करते हैं दिल से करते हैं। मैंने कभी उनके अंदर छल कपट या कैलकुलेशन कभी नहीं देखा। एंड दिस इज़ वॉट वी जेन्युइनली लव एंड रिस्पेक्ट। एंड इवन लेस्ली जी, I'm a great fan of his work, very good work he does, and ऊपर वाले ने चाहे तो हम सब मिलके भी कुछ करेंगे, we'll do something rocking. Yes, yes sir, yes sir. No, of course. आप इन गानों को सुनकर, ट्रेलर को देखकर ही आप समझ पा रहे हैं कि द डायरेक्टर इज़ मतलब ही इज़ फुल ऑफ म्यूज़िक। वरना आजकल फिल्मों में म्यूज़िक इज़ मोर लाइक अ प्रमोशनल चीज़ यूज़ करते हैं उसको, लेकिन म्यूजिकल फिल्म बनाना और ट्रूली म्यूजिकल फिल्म बनाना इज यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स इन दीस टाइम्स, जो सुमंदा has really shown, and very honest film about music, about a musician, about एक जैसे उनकी जो ग्रेसी सिंह जी का जो कैरेक्टर है कि you can take someone out of music but you can't take music out of that person, so that music will always stay in her. वो हम लोग का प्रॉब्लम है ना। जी हाँ, बिल्कुल। Always a musician. और इसमें मैं एक बात बताऊंगा, विनोद नागपाल जी जो है मेरी इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार किया है और बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है वो। विनोद जी ने जब उनको पता चला कि मैं शिमला में शूट करूंगा, उनकी थोड़ी उम्र हो गई है तो वो थोड़े से घबराए, तो मैंने कहा सर पहले आप एक बार मतलब ये कहानी सुन लीजिए। तो कहानी सुनने के बाद उन्हें फ़ौरन हाँ कर दिया। तो मैंने बोला कि सर आपको कैसा लगा? कह रहे सुमन पता है तुमने कहानी के अंदर एक चीज़ क्या रखा
क्योंकि जब मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि विनोद जी आप भी गाना गाते थे ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं कहता हूँ यार आज मैं गाना गा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना गाता था, मैं एक सिंगर हूँ और आज भी एक सिंगर हूँ। तेरे सुमन ये बात जो तुमने इस फिल्म के अंदर बोला है कि वंस अ सिंगर इज ऑलवेज अ सिंगर, जो अभी शानदार ने ये बात बताई है, तो कह रहा कि यही चीज़ जो है लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंगर कोई था नहीं होता है, सिंगर इज ऑलवेज प्रेजेंट। यथार्थ मेरे सामने है। वेरी ऑनेस्टली मेरे को इसी एज ग्रुप का एक एक्टर की ज़रूरत थी। मतलब मैं सोच रहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर मिले जो कि सिंगर भी हो, क्योंकि वो एक मतलब म्यूजिकल फिल्म है, तो वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो गाना भी गाता है, साथ ही साथ डायलॉग्स में गाना है उसके। तो यथार्थ जब पहले मेरे पास आया तो उसने जब एक डायलॉग मैंने बोलने के लिए बोला तो उसने उस डायलॉग को जो है न्यूज़पेपर में जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं ना उस तरह से बोला। फिर मैंने सोचा कि चलो एक्टिंग के बारे में बात नहीं करें तो मुझे गाना सुना। इसने मुझे गाना सुनाया और आई गॉट गूज बम्प्स। और इन्होंने पता लगता है कि वो ऑलरेडी एक सिंगिंग रियलिटी शो में जो है उसने फर्स्ट रनर अप रहा है, तो वो मेरे कैरेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कैरेक्टर बनाएंगे यथार्थ के लिए। और फिर उसके बाद जब इसकी मतलब वर्कशॉप हुआ, 6 मंथ्स का वर्कशॉप हुआ इसके साथ, और उस वर्कशॉप में जो इसकी एक्टिंग निखार के आया है, तो एक बार रणवीर दा ने जो है एक शॉट देते वक्त रणवीर दा ने बोला कि सुमन ये वाला सीन जो है अगर मतलब एक्टर अगर कोई मेरे साथ जो है को एक्टर अगर वो अच्छा ना हो तो सीन बनता नहीं है। लेकिन यथार्थ ने क्या परफॉर्म किया सुमन, सीन यथार्थ के कारण जो है और अच्छा हो गया। सो ये है सामने। थैंक यू सो मच। आई जस्ट फील कि ये जो पूरी मूवी है, जस्ट माई कैरेक्टर, जो पूरी मूवी है, मैंने 2 रियलिटी शोज़ किए हैं, तो मैं विनिंग साइड पे भी रहा हूँ, लूजिंग साइड पे भी रहा हूँ। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि फॉर एवरी वन देयर इज समथिंग इन दिस मूवी। आपके सिस्टर के लिए, आपके ब्रदर के लिए, आपके भाई के लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए। क्योंकि आपको रियलिटी शो पे टीवीज़ पे सिर्फ वो दिखता है जो बच्चे छोटे शहरों से आते हैं, जीतते हैं, बट जो बैक स्टेज की कहानी है ये मूवी आपको दिखाएगी कि असल में क्या होता है, असल रियल स्टोरी क्या है। एक टीनेजर आता है इस टाइप के शोज़ में, वो किन चीज़ों के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है और उसको वो कैसे ओवरकम करता है और वापस से स्ट्रेंथ पाता है कि वो लाइफ में कुछ कर पाए। सो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज एंड आई होप कि सबको ये मूवी बहुत पसंद है। एक दिन मैं सुमंदा से मिला तो उन्होंने जब कहानी सुनाई तो वहाँ सुनते सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। तो उसी समय डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म बनानी है। हालांकि बच्चों की फिल्मों पे कोई दांव नहीं लगाता क्योंकि इसमें रिटर्न की श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अगर अपने दिल की सुनूंगा तो हो सकता है कि ऊपर वाला भी मेरा साथ दे। तो मैंने बच्चों की फिल्म पर दांव लगा लिया। ग्रेसी जी जैसी कलाकार हमारे साथ हैं, शान जी के गाने, सुनिधि चौहान से घोषाल, मोंटी दा, मतलब एक वंडरफुल कास्ट एंड क्रू है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छी लगेगी। और 11 अवार्ड जीते हैं। अगर भारत सरकार ने बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड दिया है तो इसका मतलब फिल्म में दम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे भारत के 400 बच्चों ने फिल्म फेस्टिवल में हैदराबाद में इस फिल्म को चूज़ किया बेस्ट फिल्म। और फिल्म ख़त्म होते ही एक माँ आई उठकर और बोली कि डायरेक्टर साहब ये कमाल कर दिया आपने, मेरा बेटा 15 दिन पहले ये बोल रहा है कि मैं एक खेल में हार गया था, कि मैं ये खेल छोड़ दूंगा, जीवन में कभी नहीं खेलूंगा। और ये फिल्म देखने के बाद पहला लाइन बोल रहा है कि माँ मैं तो सोम जैसा बनूंगा, मैं फिर से खेलूंगा, मैं फिर से जाऊंगा और मैं जीत के आऊंगा। हमें तो इनाम उसी समय मिल गया। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम हियर फॉर ब्लू माउंटेन। एक तो बच्चों का फिल्म है, ऊपर से म्यूज़िकल है और कास्ट एंड क्रू इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। तो आई रियली वांट टू विश दिस काइंड ऑफ अ मूवी जहाँ इंडियन क्लासिकल भी पेश किया जा रहा है, वेस्टर्न भी पेश किया जा रहा है और दोनों साथ साथ में चल रहा है। इट्स रियली नाइस। आई रियली एंजॉयड ऑल द सॉन्ग्स। और आजकल तो मैं वही कर रहा हूँ जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक जो फिल्म में है मैं लाइव कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि एक नया चीज़ करूँ जो बहुत लोगों ने मुझे बहुत चढ़ा के रखा है कि सर आप बहुत बड़े हो, आपका शो कहाँ होता है। तो मैंने सोचा कि देखो एक काम करता हूँ, मैं आपके कोई भी सिटी हो, कोई भी टाउन हो, मैं आके वहाँ परफॉर्म करूँगा। तो वो मेरा नया मकसद है, कनेक्ट विद द फैंस, सीरीज़ ऑफ परफॉर्मेंसेस। और होपफुली आपके सिटी में आऊँगा, कभी आइएगा। सर अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक एल्बम, मूवी एल्बम, हाँ? कोई म्यूजिकल विश, वेल दिस इज़ मी लेस्ली लुइस विशिंग ब्लू माउंटेन all the very best for the movie and for the songs. म्यूज़िक बहुत
फिल्म का म्यूज़िक बहुत यंग है, फिल्म का म्यूज़िक बहुत सोलफुल है। हमने बहुत क्लासिकल एस्पेक्ट बंदिश है जैसा कुछ हमने यूज़ किया है और बहुत फ्यूज़ किया है, बट द होल थिंग इज़ द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म हैज़ अ लॉट ऑफ सोल और आई एम श्योर कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आदेश जी ने 2 गाने दिए हैं और सुनील गांगुली जी ने सुमन गांगुली, आई स्पीक अगेन। हाँ सुमन गांगुली जी ने इसको डायरेक्ट किया है और आदेश जी ने इसमें 2 गाने दिए हैं और ब्लू माउंटेन आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ गुड फिल्म। आप ज़रूर देखिएगा और आदेश जी की ये लास्ट फिल्म है, आखिरी फिल्म है जिसमें उन्होंने गाने दिए हैं, तो मैं चाहूँगी आप देखें। और ये माधवी श्रीवास्तव हमारी रिलेटिव, मेरी नीज़ है, इसने गाने गाए हैं, तो एंकरिंग की है। हाँ, गाना नहीं गाया है, एंकरिंग की है कि चाचा की गाने भी गाए हैं और मैंने गाने गाए। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ है। थैंक यू सो मच।